हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड लेसन का लाइफ प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 उसका सेकंड पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शंस। एग्जैक्टली द रेस्पिरेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस एट द बॉडी एंड सेलुलर लेवल. So body level respiration, exactly body level respiration means exchange of the oxygen and carbon dioxide between the body and environment. And in the cellular level respiration means that is the oxidation of the foodstuffs inside the cells. This type of concept only we are going to discuss in this point. So here one of the diagram is given here, that observe and label the diagram to the given so that you know very well already because हम ये जो है बहुत 2-3 years से हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि that related to the respiratory system, related to the circulatory system. So in that the first box, that is this first is the this is the nose, and this one is the mouth, this larynx, this is trachea, and this bronchi, and this diaphragm, and the last one is alveolus. Okay, this is the main part of this diagram. And in the living organism respiration occur at the 2 levels, जो मैंने already बोला है आपको कि that is 2 levels, that one of that in level of that cellular level, and the one is that is the internal levels. Okay, means respiration in the living organism takes place in the body and the cellular level, the 2 levels. Okay, oxygen and carbon dioxide are exchanged between the body and surrounding and the environment, that is means related to the body level respiration. And the next one, the cellular level respiration, means that oxidation of the foodstuffs inside the cells. Okay, so here the some questions are given here, that is depending on that. The first question, how many atoms of the carbon, hydrogen and oxygen are respectively present in the molecules of the glucose. सो ग्लूकोज ये जो वर्ड है हम बहुत दिनों से लर्न करते हैं, बट एग्जैक्टली हमें उसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी मालूम है, बट एग्जैक्टली हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि एग्जैक्टली कितने एटम्स रहते हैं कार्बन के, कितने एटम्स रहते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. ओके, एग्जैक्टली हम अगर ये क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे. सो इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देयर आर द 6 एटम्स ऑफ कार्बन and the 12 atoms of hydrogen and the 6 atoms of the oxygen. It means इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा फिर, C6, that is C6H12 and O6, like that is the formula of the one glucose molecules. It means that here C carbon atoms, 12 hydrogen atoms and 6 oxygen atoms. Okay, so next question, which type of chemical bonds are present between all the atoms? These atoms have the covalent bond between them. अब कोवैलेंट बॉन्ड एग्जैक्टली क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड ये हमने केमिस्ट्री में थोड़ा सा लर्न किया है, इससे रिलेटेड मीन्स दिस द केमिकल बॉन्ड्स आर द प्रेजेंट बिटवीन दिस ऑल द एटम्स, दैट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड. और कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स एग्जैक्टली क्या है, द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड बैलेंस बिटवीन द एटम, दैट इज द मेन वर्क ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड. दस ऑल दिस एटम्स दैट बिटवीन विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज देयर, दैट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ द केमिस्ट्री व्हाट हैपन्स द एक्चुअली व्हेन अ मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड. एग्जैक्टली हम मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, एग्जैक्टली हम कैसे बोलेंगे एज अ केमिस्ट्री लैंग्वेज के बेसिस पे. व्हेन अ मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज इट गेन्स द ऑक्सीजन एटम एंड लूजेस द इलेक्ट्रॉन. ओके, इट मीन्स दैट इट गेन्स द ऑक्सीजन. Okay, when the molecule is oxidized it gains the oxygen atom and loses the electron. Okay, ऐसा हम बोल सकते हैं ये रिलेटेड ये क्वेश्चन से. सो नाउ द नेक्स्ट मेन पॉइंट, that is a carbohydrate of the food as we consume every day are mainly utilized for the production of energy required for daily needs. We are eating the daily foodstuffs, different types of foodstuffs, उसकी कोई लिमिट नहीं रहती, हम इतना खाते रहते. But exactly why we are eating this food, because we are getting the energy with the help of foodstuffs. Okay, so carbohydrates of the food that we consume every day
ओके मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला है कि कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है, बहुत सारे फूड स्टफ्स जो है उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, एंड दैट वी आर कंज्यूम एवरी डे, एंड दैट इट इज़ मेनली यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आवर डेली नीड। हम जो डेली जो भी हमारे बॉडी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होते हैं, दैट बॉडी एक्टिविटीज़ नीड द energy and we are getting the energy with the help of like that food stuffs. Okay, means the carbohydrate are utilized for the production of energy in the form of ATP, and oxidation of glucose is carried out step by step in the cells during the process of cellular respiration. इसके बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन करते हैं, दैट इज ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है स्टेप बाय स्टेप होता है, डायरेक्टली नहीं होता है वो। ओके, वो कैसे होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सो next, ATP from this and from this purpose the glucose, a type of carbohydrates, is oxidized step by step in the cells and this is called the cellular respiration. जो glucose का oxidation होता है, that oxidize the glucose, oxidation of the glucose is carried out the step by step in the cell and during that is called the cellular respiration. Cellular respiration occurs among the living organism by two methods. अगर exactly अगर हम देखेंगे cellular respiration जो है वो cellular respiration जो है वो दो मेन प्रोसेस में जो है वो परफॉर्म होता है। दैट इज द two methods. These are the first one, aerobic respiration, and the second one, anaerobic respiration. Aerobic respiration, that is means the presence of oxygen, and anaerobic respiration means that is the absence of oxygen. Means in short, अगर aerobic respiration अगर perform हो रहा है, वो continue हो रहा है, it means that oxygen is required to perform the aerobic respiration and to complete the aerobic respiration. And anaerobic respiration, it is a no involvement of the oxygen, means there is no required to oxygen, that is means the anaerobic respiration. It means that in short, that is the absence of oxygen in the anaerobic respiration. Okay, so this is the main two types of respiration that is related to the cellular respiration. First is aerobic, शॉर्ट में हमें उसका कंसिडर करना है, शॉर्ट में हमें याद रखना है उसको, दैट एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व. ओके, एंड द अनएरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन द 3 स्टेप्स. अब एग्जैक्टली हम थोड़ा सा डिटेल में ले लेंगे. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होता है इन द 3 स्टेप्स. उसमें फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड वन है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको हम क्रेब्स साइकिल भी बोल सकते हैं, एंड थर्ड दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, इन शॉर्ट ETC reaction. Okay, so in the first, now we will discuss that is the ग्लाइकोलाइसिस. फर्स्ट, अब पहले हम क्या करेंगे, ये 2 वर्ड का मीनिंग डिस्कस करेंगे. ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन. ओके, फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स द ब्रेक डाउन. मीन्स एग्जैक्टली यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में शॉर्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, इन द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है. अब ब्रेक डाउन होता है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे रेडी होगा मॉलिक्यूल, इज इट, कुछ ना कुछ सब्सटेंस वहाँ पे रेडी होगा, इज इट. इट मीन्स we will discuss the process of the glycolysis occurs in the cytoplasm. अब ये glycolysis process होती कहाँ पे है, कौन से प्लेस पे, in the cell, in the cytoplasm. Okay, a molecules of glucose is oxidized step by step in this process and 2 molecules of the each pyruvic acids ATP and NADH2 and water are formed. Okay, so that only we will discuss, means which main respiratory substance, that is glucose का breakdown होता है. Glucose is breakdown into and converted into the 2 pyruvic acid जो है वो यहाँ पे रेडी होता है. जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, 2 pyruvic acid जो है वो वहाँ पे रेडी हो रहे, फॉर्म हो रहे. ओके, और pyruvic acid means 3 carbon containing substance. Okay, and this process is known as the glycolysis. Okay, glycolysis means breakdown of the glucose. Glucose means 6 carbon. Glucose is breakdown and to converted into the 2 pyruvic acid. Okay, अब यहाँ पे 2 pyruvic acid क्यों बोला है मैंने, because ग्लूकोज के कितने कार्बन रहते हैं, that is the 6 and the pyruvic acid
3 कार्बन कंटेनिंग मीन्स 2 मीन्स 6 हो गए यहाँ पे. पायरोइक एसिड मीन्स 3 कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द glycolysis. Okay, and the whole and sole process, the glycolysis process is going in the cytoplasm, and the cytoplasm is the cell organelles and that is present inside the cell. So the next process, tricarboxylic acid. Okay, उसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है वो डिस्कस करेंगे. मॉलिक्यूल ऑफ द पायरोइक एसिड्स फॉर्म इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टेड इनटू द मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम. फिर उसके बाद क्या होता है कि जो पायरोइक एसिड रेडी होते हैं, दिस 2 पायरोइक एसिड्स फॉर्म एंड दैट अगेन उसका थोड़ा सा इंटरनल कन्वर्सेशन होता है और उसमें किस में कन्वर्सेशन हो जाएगा उसका, टू दैट इज़ द acetyl coenzyme means further conversion after the pyroic acid internal conversion convert into the acetyl coenzyme. Okay, and further this acetyl coenzymes enter into the mitochondria and start the Krebs cycle process means start the tricarboxylic acid cycle. इसी को हम बोल सकते हैं, इसको हम Krebs cycle भी बोल सकते हैं. Okay, so means यहाँ पे इन शॉर्ट अगर हमें थोड़ा सा कंसेप्ट मैप लेना है तो हम कैसे ले लेंगे. दैट इज़ फर्स्ट क्या है हमारा, वेट फॉर मिनट. फर्स्ट दैट इज़ द फर्स्ट है हमारा ग्लूकोज मीन्स दैट इज़ द 6A. उसका क्या कन्वर्सेशन हो रहा है, 2 पायरोइक एसिड मीन्स 2 पायरोइक एसिड. ओके, अगेन उसमें क्या हो जाएगा फिर वहाँ पे एसिटाइल को एंजाइम. ओके, एसिटाइल को एंजाइम ऐसा शॉर्ट में हम उसका बोल सकते हैं. एसिटाइल को एंजाइम हो गया, फिर ये कहाँ जाएगा, दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स दिस एसिटाइल को एंजाइम्स एंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन स्टार्ट, इट मीन्स यहाँ से जो है हमारी क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएंगी. ओके, सो नाउ लेट्स वी विल डिस्कस दैट इज़ द क्रेब्स साइकिल. तो उसके पहले हम थोड़ा सा ये जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम. सो एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा आपको पायरोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ द पायरोइक एसिड, अगर आपको मालूम नहीं आप तो लिख सकते हो, CH3CO दैट इज COOH. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ पायरोइक एसिड. ओके, 2 पायरोइक एसिड किससे कन्वर्सेशन होता है ये, दैट इज द C6H12O6. दिस इज इसका कन्वर्सेशन होके ब्रेक डाउन होके ये 2 पायरोइक एसिड जो है वो फॉर्म होते हैं और इसका अगेन फर्दर इंटरनल कन्वर्सेशन होता है और एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो फॉर्म होता है. इज इट क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस दैट इज द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड. तो both the molecules in this acetyl coenzymes, जब मैंने बोला है अभी आपको कि 2 पायरोइक एसिड से 2 दैट इज़ द एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो फॉर्म होते हैं और ये एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ पे एंटर होते हैं, बिकॉज हमें मालूम है एनर्जी प्रोडक्शन जो है सेल्स के थ्रू होती है और सेल में जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिस पे ही हमारे बॉडी में जो भी सेल्स में जो भी है एनर्जी प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज वी विल कॉल द माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस. ओके, सो क्रेब्स साइकिल इसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे हम. सो एसिटाइल कोएंजाइम जो हमारे ग्लूकोज और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बेसिस पे जो एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पे रेडी हुआ है, दैट एसिटाइल को बोथ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम 2 पायरोइक एसिड मीन्स वहाँ पे कितने एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज 2 एसिटाइल कोएंजाइम्स आर फॉर्म एंड दैट both the molecules of acetyl coenzymes enter the mitochondria. Okay, that both the acetyl coenzymes that enter in the mitochondria and cyclic chain of the reaction is called the tricarboxylic acid is operated in the mitochondria. Means acetyl part of the acetyl coenzyme is completely oxidized through this cyclical process and molecules that is carbon dioxide, water and NADH2 and FADH2 are formed. अब NADH2 and FADH2 क्या है, हमारे टेक्स्ट बुक में दिए वाला है यहाँ पे. See here, NADH2 means that is the nicotinamide of the adenine dinucleotide and FADH2 that is the filament adenine dinucleotide. Okay, this is the both are the enzymes are formed in the cells and used in the cellular respiration. Okay, so हम जो डिस्कस कर रहे थे that is the
क्रेब्स साइकिल्स। मैंने अभी बोला है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो दोनों भी एसिटाइल कोएंजाइम्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो एंटर होते हैं, कहाँ पे एंटर होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर वहाँ से बिगिन होती है, दैट इज़ द क्रेब्स साइकिल। ओके, उसका कंसेप्ट भी मैंने आपको बोला है। अब एग्जैक्टली जो है क्रेब्स साइकिल जो है वो 10 प्रोसेस में 10 स्टेप्स में क्रेब्स साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके रिलेटेड ही मैं आपको डिस्कस करूँगी अभी। जो क्रेब्स साइकिल जो है दैट क्रेब्स साइकिल्स टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, एंड द क्रेब्स साइकिल्स इज कंप्लीटेड इन द 10 स्टेप्स। अब वो 10 स्टेप्स कौन से, मैंने कुछ थोड़ा सा शॉर्टकट बनाया है ताकि वो हमारे जो 10 स्टेप्स है हमें इजीली याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने उसका थोड़ा सा एक ऐसा लोगो बनाया है, दैट इज़ द CD रोडो पोहो। मीन्स C means condensation, D means dehydration, rehydration, oxidation, decarboxylation, oxidative carboxylation, and phosphorylation, oxidation, hydration, and at last the oxidation. ओके वैसे तो क्रेब्स साइकिल की डायग्राम प्रॉपरली हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट मैं ये जो पूरा अगर आपको किसी को भी आंसर से रिलेटेड कुछ चाहिए तो मैं आप कमेंट में मुझे भेज दीजिए, ये पूरा क्रेब्स साइकिल जो है उसका एक्सप्लेनेशन और उसके डायग्राम के साथ मैं उसका आंसर आपको भेज दूँगी। ओके, सो क्रेब्स साइकिल वॉज द प्रपोज्ड बाय अ सर हंस एंड दिस साइकिल इज़ नेम आफ्टर हिम, बिकॉज उन्होंने जो है उसमें डिस्कवर किया था, इसीलिए उन्हीं का नाम जो है वो ये साइकिल को दिया है, दैट इज़ द क्रेब्स साइकिल। ओके, एंड दिस साइकिल इज़ नेम आफ्टर हिम एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और सिट्रिक एसिड साइकिल्स। मीन्स अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन इन डिटेल क्रेब्स साइकिल, एक्सप्लेन इन डिटेल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और साइट्रिक एसिड, तीनों का आंसर सेम ही रहेगा। ओके, सो द एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल्स enter the mitochondria and located in the cytoplasm, and the participate this the chemical reaction takes place in the chemical Krebs cycles, and in the cyclic chemical reaction acetyl coenzymes is completely oxidized and to form that yielded the molecules, that is carbon dioxide, water, NADH2 and FADH2, and the energy that is in the form of ATP upon the complete oxidation. Okay, so first यहाँ पे मैंने जो आपको CD बोला है, द CD मीन्स ये क्या हो गया यहाँ पे कंडेंसेशन, जो भी वाटर है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दैट इज़ अ कंडेंसेशन, फिर उसका जो कंडेंसेशन होता है दैट इज़ मीन्स रिलेटेड टू द C। ओके, ये जो हमारी उसी से रिलेटेड ये 10 स्टेप्स से रिलेटेड हमारी जो है वो क्रेब्स साइकिल्स कंप्लीट होती है।